तो ये हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट है इंटरनल combustion engine. Heat engine, any type of engine or machine which drives heat energy from the combustion of fuel of any other source and convert this energy into mechanical work is termed as the heat engine. वहाँ पे क्या है भी हम जो हमारी हीट एनर्जी है उसको फ्यूल को जब हम आगे बर्न करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. देन हीट इंजन में बी क्लासिफाइड इनटू मेन two main classes as follows. बाहरी है तो Point one, external combustion engine and second is internal combustion engine. External combustion engine क्या होता है जिसमें क्या है combustion of fuel takes place outside the cylinder as in the case of steam engine. जैसे जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है वो सिलेंडर के बाहर आउटसाइड प्रोड्यूस होती है. एग्जांपल इन्होंने लिया स्टीम इंजन की, वेयर द हीट इज of combustion is employed to generate steam which is used to move a piston in the cylinder. Other example of external combustion engine are hot air engine, steam turbine, and closed cycle gas turbine. These engines are generally used for driving locomotives, ships, generation of electric power, etc. अब आजकल जो नॉर्मल चलते हैं वो चलते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन. इंटरनल कम्बशन इंजन में क्या है, सिलेंडर के बीच हमारा जो पिस्टन है मूव करता है अप डाउन पोजीशन में, वहां पे हमारा फ्यूल है जो उसकी स्प्रे होती है वहां पे बर्न होता है. तो इससे क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा. इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हेलो हेलो. पड़ेगा सर. हाँ हाँ. पड़ेगा सर, फर्क पड़ेगा. Combustion of fuel with oxygen of air occur within the cylinder of engine. The internal combustion engine group include engine employing mixture of uh, combustible gases of air known as gas engine. These using lighter liquid fuel or spirit known as the petrol engine, and those using heavier liquid fuel known as oil compression ignition of diesel engine. The external combustion engine claim the following advantage over internal combustion engine. सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज जनरली हाई. जो हमारा एक्सटर्नल कम्बशन इंजन है जब हम क्लेम करते हैं फॉलोइंग एडवांटेज क्या हो गए हमारे ओवर इंटरनल कम्बशन इंजन के, स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होगी इसकी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कम्बशन ऑफ फ्यूल. चीपर फ्यूल कैन बी यूज्ड जो हमारा एक्सटर्नल होता है. इवन सॉलिड फ्यूल कैन बी यूज्ड एडवांटेजली. Third, due to external combustion of fuel, it is possible to have flexibility in arrangement. Then fourth is the unit are self-starting with the working fluid, where the in case of internal combustion engine, some additional equipment or device is used to starting the engine. Then reciprocating internal combustion engine, other the following advantage over external combustion engine. ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इंटरनल कम्बशन इंजन की, ग्रेटर मैकेनिकल सिंप्लिसिटी होती है, वेट टू पावर रेशियो इज जनरली लो, लोअर इनिशियल कॉस्ट, easy starting from cold condition, and these unit are compact and those require less space. ठीक है, जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है इंटरनल इंजन की, मैकेनिकल सिंप्लिसिटी ज़्यादा होती है, वेट इसका कम होता है दूसरे इंजन के कंपैरिजन, जर्नी लोअर, इनिशियल कॉस्ट कम होती है, वो आगे कोल्ड में हम मतलब ठंडी में इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट दोज रिक्वायर लेस स्पेस. ये आ गया समझ में? यस सर. नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ आईसी इंजन. So many experimental engine were constructed around 1878. The first really successful engine did not appear, however, until 1879 when the German engineer Dr. Otto built his famous auto gas engine. The operating cycle of this engine was based upon principle first laid down in 1860 by the French engineer named Pierre de la Roches. The majority of modern IC engine operate according to these principles. The development of known diesel engine began out 1883 by the uh, Rudolf Diesel, although the differ in many important respects from the auto engine. The operating cycle of modern high-speed engine is thermodynamically very similar to auto cycle.
तो सबसे पहले अगर ये इंजन जो जो हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन हमने वो किया है 1878 में बनाया था, लेकिन जो प्रॉपर उसकी वर्किंग हम वहाँ पे यूज़ करने लगे थे वो 1879 में था। बनाया किसने था वो जो हमारा डॉक्टर ऑटो वेलेट था, उसी के हिसाब से हमने ऑटो गैस इंजन हमने उस टाइम उन्होंने बनाया था। लेकिन जो जो इसकी स्टार्टिंग कर दी थी बनाने के लिए वो था 1860 में, वहाँ से उस टाइम से बनाना स्टार्ट किया। उसके आगे जब हमारा वो कंप्लीट हुआ वो 1878 में हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। 1879 में वो हमारा प्रॉपर वर्किंग में हम उसे यूज़ करने लग गए थे। क्लासिफिकेशन क्या होगी इसकी आईसी इंजन की, पता है किसी को? हेलो, तो कहाँ सो जाते हो आप? सर सर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होगी सर। हम्म तो इंटरनल कम्बशन इंजन में बी क्लासिफाइड एज गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। कौन सी उसमें साइकिल जो ऑपरेट होते हैं वहां पे? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कम्बशन। कम्बशन मतलब भी जो बर्निंग होती है वहां पे कैसे होती है? ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन, ड्यूल कम्बशन और सेमी डीजल साइकिल इंजन। देन अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर जो वहाँ पे पिस्टन हमारा मूव कर रहा है उसका अरेंजमेंट कैसे है? हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल, वी टाइप इंजन एंड रेडियल इंजन। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि इनमें से ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, स्टेशनरी इंजन, पोर्टेबल इंजन, मैरिन इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन एंड एरो इंजन। Then according to fuel employed and the method of fuel supply to the engine cylinder, कैसे कौन कौन से हमारे इंजन होते हैं? सबसे पहले ऑयल इंजन, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, कार्बोरेटर, हॉट हब एंड सॉलिड इंजेक्शन एंड एयर इंजेक्शन इंजन। सिक्स है अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन। स्पीड कैसे इंजन की? लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड हाई स्पीड इंजन। देन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ आइग्निशन, एक स्पार्क आइग्निशन होती है, कंप्रेशन आइग्निशन होती है। स्पार्क आइग्निशन किस में होती है? जो यहाँ पे हमारी नॉर्मल एग्जांपल है उसकी स्कूटर का जो इंजन होता है वो स्पार्क आइग्निशन होती है, वहाँ पे स्पार्क लगा होता है। स्पार्क प्लग देखा है ना आपने? यस सर, देखा सर। हाँ हाँ। 8th पॉइंट है अकॉर्डिंग हाँ टू, हाँ, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग द सिलेंडर। कूलिंग कैसे होती है? एयर कूलिंग इंजन होते हैं, वाटर कूलिंग इंजन। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्न इंजन, क्वालिटी गवर्न इंजन एंड क्वांटिटी गवर्न इंजन। ये 3 तरह के इंजन होते हैं जो हमारे गवर्नर गवर्नर वहाँ पे यूज करते हैं। हिट एंड मिस गवर्न कैसे है? मतलब वो प्रॉपर एक उसमें फ्लो में नहीं, फ्लूइड जो हमारा फ्लूइड यूज करेंगे वहाँ पे हम, वो फ्लो करेगा। वो क्या है? गिरा बंद, ऐसे मिस उसके हिसाब से चलता रहेगा। क्वालिटी गवर्न इंजन एंड क्वांटिटी गवर्न इंजन। अकॉर्डिंग टू वाल्व अरेंजमेंट, जो हमारे वाल्व लगे होते हैं वहाँ पे, ओवरहेड वाल्व इंजन, एल हेड टाइप इंजन, टी हेड टाइप इंजन एंड एफ हेड टाइप इंजन। देन 11th पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। तो नॉर्मली जो हमारी गाड़ी वगैरह होती है उसमें कौन सा इंजन यूज करते हैं हम? नंबर ऑफ सिलेंडर कितने होते हैं उसमें? वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? हेलो सर, वो हॉर्स पावर दो डिपेंड। सिलेंडर। वो हॉर्स पावर पे डिपेंड करेगा। सही है। हाँ जी सर, यही पढ़ा था मैंने। हाँ जी तलविंदर, किस पे डिपेंड करेगा वो? एप्लीकेशन क्या होती है ऐसी इंजन की? हेलो, हाँ जी सर। एप्लीकेशन कौन कौन सी होगी? द आईसी इंजन आर जर्नी यूज्ड फॉर रोड व्हीकल, एग्जांपल स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस होगी। एयरक्राफ्ट, हाँ जी सर। locomotive and construction in civil engineer equipment such as bulldozer, scraper, power shovel,
and pumping set, सिमंस हॉस्पिटल, सिविल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये हमारी होती है एप्लीकेशन उसकी आईसी इंजन की, कहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं। बेसिक आइडियाज ऑफ आईसी इंजन। The basic idea of internal combustion engine, the cylinder which is closed in one end is filled with the mixture of fuel and air, and the aircraft turn in pushes cylinder. The piston is forced up and compress the mixture in the top of cylinder. The mixture is set of alight and it is warm. It creates a gas pressure on the piston, forcing it down the cylinder. This motion is show the arrow. The piston push on the rod which pushes on the crank. The crank is given rotary motion, and the flywheel fitted in the end of crankshaft store energy and keep the crank turning steady. ये देखो आपके पास हमारे पास सिंपल दिया हुआ है बेसिक आइडियाज ऑफ आईसी इंजन। इसमें क्या है, पहले सबसे पहले ये डायग्राम देख लो, हमारे पास क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है नीचे। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। ये वो हमारा पिस्टन हो गया, जो बॉडी हमारी बनी हुई है वो सिलेंडर, और जो हमारा पिस्टन है जहाँ पे जिसके ऊपर जो रॉड हमारी कनेक्टिंग रॉड लगी हुई थी उसको पिस्टन के साथ अटैच करने के लिए क्या है, गुडगॉन पिन दी हुई है हमें, जो उसको पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच करती है। उसके आगे हमारी क्रैंक होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी, एक साइड हमारा फ्लाई व्हील हो गया। तो क्रैंक शाफ्ट से क्या होगा भी, जो हमारी पावर है, जो जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, वो आगे हम जो भी उसे वर्किंग कंडीशन में आगे यूज करना चाहें वहाँ पे यूज कर सकते हैं, आगे रॉड लगा के आगे उसके साथ। तो इसके आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, ये सभी को पता होंगे यार, एक एक करके सारे बताओ क्या पार्ट्स होंगे उसके। किसके पार्ट सर? आईसी इंजन के